Hello, my dear students. My name is Sunny Verma, Faculty of Mechanical Engineering in Ludhiana Polytechnic College. Today, we are discuss the engineering material subject of mechanical 4th sem students. This is book of engineering material KPS Chauhan, writer name, and it is published by Eagle. You can see on the screen. This is your syllabus. Firstly, I am explain your syllabus, which contents are contained in your syllabus. First one, your first chapter, introduction. You can see on screen. This is a material, history of material, scope of material, our overview of different engineering materials and applications, classification of materials. Basically, all things involved in your first chapter. You can see on your screen. Then second chapter is crystal. Is basically how the materials are formed in the crystal form. So all these things are be discussed in this chapter. Your third chapter is to be a metal and alloy. You can see on your screen. Is first one is a ferrous metal, cast iron, steel, non-ferrous. I am discuss these topic in third chapter. Then next one is chapter is heat treatment. Heat treatment is basically purpose to hard the various material using the various heat treatment process. This is discussed in fourth chapter. And fifth one is plastic, thermosetting plastic and thermoplastic. All these things are discussion in fifth chapter. Sixth chapter is advanced material, ceramics, adhesive, smart materials. We will this discussion in sixth chapter. Seventh one is a miscellaneous materials. Next one is your miscellaneous materials. Some other materials like tool and die materials, bearing metals, all are these such things discussed in our seventh chapter. So students, this is your syllabus. You can see this. This is your detailed contents. And this is your practical list. We will performing 8 practicals in your lab regarding your syllabus. Students, see our 8 experiments and take a screenshot of this list. It can be very helpful to our further use. So there are 8 practicals in your subject. Subject name is engineering material. Basically your subject is engineering material. Your engineering materials subject is related to or concerned to science which are described by the various material which are used for different purposes. Basically this is your syllabus. Take
screenshot of this. Basically this is your engineering material book. You can purchase the Eagle Publisher or IPH. You may be a preferable. Now students, I would explain the different topics regarding this book. You can see मैं नोट्स बनाए ने, तुसी देख सकते हो। सब तो पहला आप इंजीनियरिंग मैटेरियल बारे समझांगे कीवर्ड्स किहड़े-किहड़े ने। सब तो पहला आप कीवर्ड्स बारे गल करांगे। फेरस मेटल, नॉन फेरस, मेटल्स, नॉन मेटल्स। दिस इज़ कीवर्ड्स, ये बार बार इस्तेमाल होणगे। तुसी इन्हां नूं पहला समझना है, फिर तुहानूं अगे असी इंट्रोडक्शन दे विच इंजीनियरिंग मैटेरियल बारे समझावांगे। फर्स्टली यू कैन लर्न ऑल दिस कीवर्ड्स, then further we started your syllabus content. Now we talk the various keywords: ferrous metal, non-ferrous metals, metal and non-metal. Firstly we talk about the ferrous metal. The metal which contain iron content are called ferrous metals. Contain means what? घुलना. Content means what? कण. ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੇ ਕਣ ਕੁਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, the metal which contain iron content are called ferrous metal. ठीक है। नेक्स्ट वन नॉन फेरस. नॉन फेरस मेटल, the metal which do not contain iron content are called non-ferrous metal. You can see your screen. Then next topic is metal. Metal is what? Metal is a very important topic in engineering material. Metal and non-metal, it's very important topic regarding the engineering material. So metal basically, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो धातु, और नॉन मेटल को हम कहेंगे अधातु। तो मेटल जिसके अंदर धातु होते हैं और मेटल जिसके अंदर धातु नहीं होते। तो बेसिकली जो मेटल होता है उसमें फेरस और नॉन फेरस दोनों चीज़ें आती हैं। आप देख सकते हैं जो फेरस है और नॉन फेरस दोनों चीज़ें, फेरस मेटल और नॉन फेरस दोनों मेटल्स, दोनों चीज़ें मेटल्स में आती हैं। बेसिकली जो मेटल होते हैं वो कठोर होते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो कठोर नहीं होते। और बेसिकली इनमें मेलेबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है। इसमें मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी नहीं होती। बेसिकली जो मेटल होते हैं वो सॉलिड फॉर्म के होते हैं, आप देख सकते हैं जनरली सॉलिड। मरकरी को छोड़कर, मरकरी इज़ एक्सेप्शन, मरकरी को छोड़कर जो सॉलिड चीज़ें हैं वो सारी मेटल हैं। सॉलिड चीज़ें नॉन मेटल में भी आती हैं पर ये हार्ड नहीं होती, कठोर नहीं होती। इसमें जो चीज़ें सॉलिड आती हैं वो हार्ड होती हैं और कठोर होती हैं। इट इज़ बेसिकली हार्ड एंड टफ एंड मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ये जो चीज़ें हैं इसमें जो नॉन मेटल में आता है वो नॉट हार्ड, नॉट मेलेबल, नॉट डक्टिलिटी, दिस प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। जो बेसिकली नॉन मेटल में लिक्विड भी आएगा और गैसेस भी आएंगी, लेकिन मेटल में हमेशा सॉलिड चीज़ें ही आएंगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने तभी इसको पहले डिस्कस किया। ठीक है।
अब मैं आपके सामने स्टूडेंट्स मैं एक लाइन पढ़ने जा रहा हूँ, फिर आप समझेंगे इस बात को। द मेटल इज़ कैपेबल ऑफ चेंजिंग देयर शेप परमानेंटली। ठीक है, फर्स्ट वन दिस कि वो अपनी शेप चेंज कर सकता है परमानेंटली। सेकंड वन, दे पोजेस स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ लाइक प्लास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ। वो उसमें एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि प्लास्टिसिटी होना और स्ट्रेंथ होना, ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी है मेटल की। मेटल दे हैव गुड लस्टर, चमकीला होता है, लस्टर मीन्स चमकने वाला। रेजिस्टेंस टू क्रोजन, क्रोजन्स को रेजिस्टेंस करने वाला। मेलेबिलिटी, स्टिफनेस आर सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आपको कंडक्टिविटी का मतलब समझना पड़ेगा। कंडक्टिविटी मीन्स जो चीज़, जो थिंग्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने दे उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी उसे कहेंगे जो दीज थिंग्स आर, जो किसी को फ्लो करने दें। इट विल बी लेटर डिस्कशन इन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। बस आप इस टाइम ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी को जो फ्लो करने दें उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हाई थर्मल उसे कहेंगे जो हाई, बहुत ज़्यादा ताप को सहन कर सके। ठीक है, ये हमारा मेटल है। जनरली सॉलिड ही आते हैं मेटल में, मरकरी को छोड़कर। मरकरी इज़ एक्सेप्शन। ठीक है, इट इज़ अ मेटल। अब हम बात करेंगे, नाउ वी टॉक अबाउट द नॉन मेटल। नॉन मेटल बेसिकली हैव अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने ये बेसिक चीज़ समझ ली कि वो सॉलिड होता है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों होते हैं, बस आप इसका मेन डिफरेंस समझ जाएंगे। धातु और अधातु, ये इसका मेन डिफरेंस है। ये सॉलिड में होगा, ये भी सॉलिड में होगा, पर इसका सॉलिड जो है वो थोड़ा सा लेस हार्ड होगा, लेस डक्टाइल होगा, मतलब लेस टफनेस होगी। इसमें हार्डनेस ज़्यादा होगी, टफनेस ज़्यादा होगी। ये बेसिकली मेटल्स में आ गई, आयरन, एल्युमिनियम, ये बेसिकली ये सॉलिड जो हो गया, ये प्लास्टिक वगैरह आ गए, लेस हार्ड। ठीक है, बेसिकली सॉलिड इसमें भी है और सॉलिड ये भी है। मेटल भी सॉलिड है और नॉन मेटल भी सॉलिड है, बस ये ज़्यादा हार्ड होगा, ये लेस हार्ड होगा, बस इतना ही फ़र्क है। और ये जो नॉन मेटल होते हैं उसमें लिक्विड भी आता है और गैस भी आती है। बेसिकली हमारे 91 जो 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें 91 तो मेटल हैं और 21 जो हैं वो नॉन मेटल है, आप ऐसा समझ सकते हैं। दिस इज़ बेसिक some important few points of metal and non-metal, ferrous and non-ferrous. Now I will discuss another keyword. This is your keywords. ठीक है, now another keyword I will discuss. This is your another keyword, substance. Substance is a word. It can be used in every phase in this book. Every definition, every quotation, every questions, you can use this word. This word name is a substance. What is substance? क्या होता है substance? तो substance क्या होता है? Substance is a matter which have a स्पेसिफिक कंपोजिशन, जिसके अंदर अपनी खुद की एक स्पेसिफिक कंपोजिशन होती है एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। एवरी प्योर एलिमेंट इज़ ए सब्सटेंस। हमारे 118 एलिमेंट्स हैं, वो सारे क्या हैं? सब्सटेंस। हमारे एवरी प्योर कंपाउंड इज़ ए सब्सटेंस। हमारे जितने भी कंपाउंड्स हैं वो क्या हैं? सब्सटेंस। सो एग्जाम्पल से समझते हैं। आयरन इज़ एन एलिमेंट
एंड हैंस इट इज़ आल्सो ए सब्सटेंस। तो आयरन जो है वो एलिमेंट है, तो इसलिए इसको हम सब्सटेंस कहेंगे। मीथेन इज़ ए कंपाउंड, मीथेन एक कंपाउंड है, हैंस इट इज़ ए सब्सटेंस, ये भी सब्सटेंस है। तो अगर आप बेसिकली आपने यही बात याद रखनी है कि जो प्योर एलिमेंट्स है 118 और जितने भी प्योर कंपाउंड्स हैं ये सारे क्या हैं, सब्सटेंस। सबसे पहले आपको सब्सटेंस की डेफिनेशन समझनी होगी, अदरवाइज़ क्योंकि इसके रिगार्डिंग ये सारी डेफिनेशंस बनती हैं बुक के अंदर, वो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। ये कीवर्ड्स हैं फेरस, नॉन फेरस, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सब्सटेंस। इट इज़ these are those words which can be see in every chapter in the book, so it is very important definition what is substance. So this is another, आप इस definition को भी यूज़ कर सकते हैं, a particular kind of matter with a uniform properties. It is also a definition of substance and it is also a definition of a substance. जो आपको बेटर लगे, जो आपको गुड लगे, वो आप इन दोनों में से यूज़ करके इसको याद कर सकते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके सारे चैप्टरों में ये वर्ड यूज़ होगा सब्सटेंस, आप इसको नहीं समझ सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिकली ये आपके कुछ की वर्ड्स थे जो मैंने अभी आपको कराए हैं। ये बेसिकली फेरस, नॉन फेरस, मेटल एंड नॉन मेटल, सब्सटेंस। अब हम बुक की तरफ चलते हैं। बस पहले आप इन सभी डेफिनेशन को अच्छी तरह एक बारी समझ लेना, उनको याद कर लेना, तभी आपको अगले नेक्स्ट चैप्टर समझ में आएगा इंट्रोडक्शन का। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स आई विल डिस्कस योर फर्स्ट चैप्टर। तो आपके पहले चैप्टर के टॉपिक का नाम है मटेरियल। सबसे पहले हम मटेरियल को समझेंगे कि मटेरियल क्या होता है। तो मटेरियल को समझने के लिए, मटेरियल इज़ अ ब्रॉड टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर ए सब्सटेंस। मैंने अभी समझाया कि आपको पहले सब्सटेंस समझना पड़ेगा, और सब्सटेंस आउट ऑफ विच ए थिंग्स और कैन बी मेड। मतलब मटेरियल क्या हुआ, मटेरियल एक बहुत ब्रॉड टर्म है जो कि यूज़ होती है सब्सटेंस के लिए, और जो भी चीज़ें बाहर निकलती हैं सब्सटेंस आउट और विच थिंग्स, जो भी थिंग्स जो हैं बाहर आते हैं सब्सटेंस से और बनते हैं सब्सटेंस से, ऑल आर इंक्लूडेड इन मटेरियल। ठीक है, इसके लिए आप पहले सब्सटेंस को अच्छी तरह से समझ लेना, मैंने लास्ट वीडियो में समझाया। ठीक है, सॉरी इसी वीडियो में समझाया। सो इट कंसिस्ट ऑफ मैटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेटल, नॉन मेटल, स्टोन, वुड, ऑल आर मटेरियल्स। ये सारे क्या हैं, मटेरियल्स हैं। मेटल्स, नॉन मेटल, स्टोन, वुड्स और आर द एग्जांपल ऑफ मटेरियल। ठीक है, सो कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले सब्सटेंस समझना पड़ेगा। जब आपको सब्सटेंस समझ में आ गया तो मटेरियल भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। व्हाट इज़ मटेरियल साइंस। सो मटेरियल आप समझ ही गए होंगे। साइंस मीन्स क्या होता है, जानना, नो टू थिंग्स। ठीक है, तो जहाँ पर हम मटेरियल के बारे में जानेंगे कि मटेरियल कैसे बना हुआ है, क्या इसकी कॉम्पोजिशन है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसके यूजेस हैं, ये सारा कुछ हम मटेरियल साइंस में समझेंगे। तो मटेरियल साइंस की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। सो मटेरियल साइंस इज़ आल्सो नोन एज इंजीनियरिंग मटेरियल, मटेरियल इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस। जो मटेरियल साइंस है उसको हम इंजीनियरिंग मटेरियल के नाम से भी जानते हैं और मटेरियल साइंस के नाम से भी जानते हैं। It is a branch of a science that deal with the internal geometrical details, properties, characteristics and behavior of nature.
नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक मटेरियल अंडर द वेरियस फिजिकल एंड एनवायरनमेंट कंडीशन। इसका कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा साइंस है जिसमें हम इंटरनल ज्योमेट्री की डिटेल लेते हैं कि मटेरियल बना कैसे हुआ अंदर से, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका कैसा बिहेवियर है, ये सारा कुछ हम इसमें मटेरियल साइंस में समझेंगे। ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है, आप इसे देख लेना सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसका हर एक इन्वायरमेंटल कंडीशन में वो कैसे बिहेव करता है, ये सारा कुछ स्टडी करेंगे हम ये सारा कुछ स्टडी किया जाता है मटेरियल साइंस में, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, मटेरियल साइंस उसे कहते हैं जहाँ पर हम मटेरियल के बारे में जानना हो कि मटेरियल कैसे बना है, क्या उसकी डिमेंशन है, क्या उसके इंटरनल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे वो बना हुआ है, कैसा उसका अंदर क्रिस्टल्स बने हुए हैं, ये सारा कुछ जानना, वो कैसे हर एक इन्वायरमेंट में कैसे बिहेव करता है, ये सारा कुछ हम मटेरियल साइंस में समझेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ मटेरियल साइंस। बेसिकली मटेरियल साइंस वो हो गया जिसमें हम मटेरियल के साइंस के बारे में जानेंगे कि मटेरियल कैसे बना हुआ है, जानना सब कुछ मटेरियल के क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बेसिकली अब इन मटेरियल साइंस का स्कोप क्या है, इसका यही स्कोप है कि हम इससे नवे नवे मटेरियल तैयार करके हम नवे नवे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं उससे। तो बिलियन ऑफ टन्स ऑफ रॉ मटेरियल आर टेकन एनुअली फ्रॉम द नेचर टू बी मैनिपुलेट स्टेप बाय स्टेप into various products and system for a social purposes। वही हम बिलियंस ऑफ टन्स रॉ मटेरियल लेते हैं, उसको बनाते हैं, वेरियस प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं उन मटेरियल से और सोशल पर्पस वास्ते उनको यूज़ करते हैं, यही मतलब है इसका। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द मटेरियल हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द प्राइम सोर्स ऑफ मैनकाइंड। मटेरियल की पहचान करके उसे ढूंढ निकालना, ठीक है, ये सबसे बड़ा बेसिकली इस लाइन का ये मतलब है कि जब हम मटेरियल को पहचान लेंगे, मैनकाइंड का मतलब होता है कि ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, जब हम इसको पहचान लेंगे तभी इसका आगे स्कोप बनेगा। बेसिकली सेकंड लाइन का ये मतलब है। थर्ड लाइन का ये मतलब है, द मटेरियल इफेक्टेड ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है ये, ठीक है। तीसरी लाइन का ये मतलब है। चौथी लाइन का ये मतलब है, द इन्वेंशन ऑफ द आयरन हैज़ इफेक्टेड द कॉमन पर्सन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। जो आयरन है वो इफ़ेक्टेड करता है हर एक कॉमन पर्सन की एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में। तो ये बेसिकली चार फ्यू पॉइंट्स थे स्कोप ऑफ द मटेरियल साइंस। बेसिकली यही स्कोप है कि हम मटेरियल को पहचानना, नवे नवे मटेरियल्स को बनाना, ताकि हम नवे नवे उसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकें, यही मटेरियल साइंस का स्कोप है। और मटेरियल साइंस के बारे में मैं फिर बता देता हूँ। मटेरियल साइंस का मतलब ये हो गया कि मटेरियल को जानना, वो कैसे बना है, कैसे उसकी कंपोजिशन स्ट्रक्चर है, कैसे उसके स्ट्रक्चर उसका बना हुआ है, कैसे उसकी केमिकल कंपोजिशंस हैं, ये सारा कुछ हम मटेरियल साइंस में समझेंगे। मटेरियल मैंने आपको पढ़ाई दिया है, ठीक है। यही हमारा इंट्रोडक्शन में है, ठीक है।